Welcome in History of English Literature course with Muhammad Qasim from Pakistan. All of our students around the globe who understand a little bit of Urdu or Hindi or a mixture of English as well can attempt or can attend this course, and I hope so that this course is going to be of great importance and of a great worth for all of you. So, we are here today with our course History of English Literature, but as the slide shows Greek age, so I hope all of you would be much confused about the term Greek age. Okay. इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ते हुए स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे जैसा कि एक्सपीरियंस हुआ, बीएस इंग्लिश करते हुए, मास्टर्स इन इंग्लिश करते हुए, इवन के एमफिल इंग्लिश करते हुए, then for their job tests and interviews, many students have much trouble with this subject. Renaissance एज की बात करते हैं, एंग्लो सैक्सन एज, एंग्लो नॉर्मन एज की बात करते हैं, but there are some important historical events behind those literary movements. जब literary movements की बात करते हैं, Renaissance age की हम बात करते हैं, when we discuss that, we say fall of Constantinople was an important event behind Renaissance movement. So what was Constantinople? In whose context it was fall, and in whose context it was a conquest? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किसकी फतह थी और किसकी शिकस्त थी, और इसके नतीजे में हुआ क्या दैट अफेक्टेड रिनेसेंस? इन सारी बातों को जानने के लिए हिस्ट्री ऑफ यूरोप में से क्लासिकल एज को जानना बहुत ज़रूरी है, because without understanding classical age you cannot actually understand the history of English literature or literary movements. Why? Because एक तो इसमें historical background में ऐसा बहुत सारा कुछ है that is directly connected with middle ages and then Renaissance age, और दूसरी बात यह है कि इंग्लिश राइटर्स, इंग्लिश अर्ली राइटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लैटिन लिटरेचर का, ग्रीक लिटरेचर का, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स का. सो क्लासिकल राइटर्स इन ग्रीक एंड रोमन एजेस, दे अफेक्टेड डायरेक्टली the early writers of English literature. So in that perspective, we must be familiar a little bit with Greek and Roman literature that has a dominant place in the history of European literature. And for that reason, we are going to give a brief introduction of classical ages of Europe. What was going on in Europe? And what was behind Shakespeare and Francis Bacon and Christopher Marlowe and John Donne? What was going on on the land of Europe before them? So we are very much centered on Mediterranean Sea. And this lecture series that we are going to start today is of much importance for CSS students as well, and those who are interested to study the history of Europe. यूरोप की तारीख़ में दिलचस्पी लेने वाले भी इस कोर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम. इसके अलावा CSS एस्पायरेंट्स के लिए this is, I think, a very ideal opportunity to get all this free of cost at your doorstep, sitting at your home. You can watch all this here on your screen. So be very much attentive, and what I would suggest you, just take notes from this video. इस पर अपने notes बनाते जाएं, so you will one day you will become a scholar of history actually, or what we are going to look at in this series of lectures. All right. So in classical age, अभी 2020 है when I am speaking. If we move back
2020 years, it would become 0, and then it will become 1 before Christ, 1 BC. And there comes our classical age of Europe, that includes Greek and Roman age. In first lecture, we shall discuss a little bit about Greek age. ग्रीस कंट्री का नाम है, ग्रीक इससे एडजेक्टिव बना है, यूनान जिसको हम कहते हैं उर्दू और हिंदी में। ग्रीक एज स्टार्ट होती है 1200 बिफोर क्राइस्ट से। जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम से, जो कि इंग्लिश वर्जन में यूज़ होता है, पहले मैंने उसको बोला। एंड देन इन मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट व्हाट वी यूज़, ईसा अलैहिस्सलाम से 1200 साल पहले, 12 सदियाँ पहले ग्रीक एज, यूनानियों की तारीख़ स्टार्ट होती है। ग्रीक एम्पायर की तारीख़ तो इससे पहले की भी है, लेकिन ये इनका अच्छा ज़माना था क्योंकि इसमें बड़े बड़े राइटर प्रोड्यूस हुए। आज तक उनकी तहरीरें और उनके प्लेस मौजूद हैं, और इसके अलावा इनकी बिल्डिंग्स और इमारतें बाद ऐसी मौजूद हैं, इनकी बनाई हुई चीज़ें, इस पूरी ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी एक पूरी तहज़ीब है, इल्म की, तमद्दुन की, तहज़ीब की, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता था यूरोप की मिडल एजेस से पहले, बिफोर स्टार्ट ऑफ मिडल एजेस। सो एक्चुअली देयर वाज क्लासिकल एज जब यूरोप का उरूज था, देन वी हैव डार्क और मिडल एजेस, and then we have Renaissance, that Europe once again reawakened from the deep slumber. Okay, ग्रीक एम्पायर बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसने दूर दूर तक, ये आप मैप में देख सकते हैं, बहुत से ख़ित्तों पर अपना कब्ज़ा किया हुआ था, कॉलोनाइज़ किया हुआ था बहुत सी जगह को। ये आप कॉन्टिनेंट वाइज देख सकते हैं, ग्रीक कंक्वेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ तक हुई और ग्रीस कंट्री कहाँ तक था। अच्छा, यूनानियों की जो एम्पायर थी, इसके मुकाबले में उस ज़माने के अंदर दूसरी बड़ी एम्पायर जो थी वो पर्शिया थी। पर्शिया वाज अनदर ग्रेट एम्पायर आफ्टर ग्रीक एम्पायर। ऑल राइट, सो ग्रीक एम्पायर का आप देख सकते हैं इजिप्ट और पर्शिया, एंड देन there are so many areas which were colonized by Roman Empire, Greek Empire. All right, so we will just discuss briefly, because we are not going actually to study history, but we are going to study history of English literature. So we will just discuss very briefly. ग्रीक एज को हेलेनिस्टिक एज भी कहते हैं, बिकॉज हेलन वाज मिथिकल फोर फादर। ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर उनके बड़े आबाव अजदाद में से एक हेलन था, इसलिए ग्रीकिश सिविलाइजेशन को, इस तहज़ीब को हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। 4000 बिफोर क्राइस्ट से इस सिविलाइजेशन का, इस तहज़ीब का आगाज़ होता है। 2000 बिफोर क्राइस्ट, 2000 बिफोर क्राइस्ट से ये फ्लरिश होना स्टार्ट होती है, फलना फूलना स्टार्ट होती है तहज़ीब। 1600 बिफोर क्राइस्ट में रीच्ड इट्स हाइट, ये अपनी बुलंदियों को पहुंची, और 1200 से लेके 750 बिफोर क्राइस्ट तक का ये जो चंद सदियां हैं, 4.5 सदियां, 450 साल, ये एज होमरिक एज कहलाती है, क्योंकि इसमें होमर बहुत बड़ा ग्रीक पोइट जो है वो इस एज में गुजरा। अब आप देखें कि जिस होमर की इलियड के इन्फ्लुएंसेस हैं पूरे यूरोपियन लिटरेचर में, इटालियन में, फ्रेंच में, लैटिन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जिसका इन्फ्लुएंस है, वो आज से कितनी सदियां पहले, आज से कमो बेश आप यूँ कह लें कि 2700 साल पहले की कोई एज है जिसमें ये पोइट गुज़रा है। सो इसका एक इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। 750 से लेके 500 बिफोर क्राइस्ट तक, ये 150 साल, ये वो ज़माना था जब ग्रीक एम्पायर ने इर्द गिर्द के एरियाज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, कॉलोनाइज़ करना शुरू किया, बहुत से मुल्कों, ख़ित्तों पर कब्ज़े करना शुरू किए। इस एज में अब यहाँ मैं टच दे रहा हूँ बैजेंटियम को, जिसे बाज़नतीनी हुकूमत हमारे उर्दू किताबों में ज़िक्र किया गया। एक बास्पोरस जो जगह, एक बास्पोरस के ऊपर बैजेंटियम एक इलाका था जिसको कॉलोनाइज़ किया ग्रीक एम्पायर ने इस दौर के अंदर।
और कई सदियों बाद जाके ये कंट्री जो ग्रीक एम्पायर ने कॉलोनाइज़ किया बेजेंटियम, बाद में ये ख़ुद एक बहुत बड़ी एम्पायर के तौर पे, एक सल्तनत के तौर पे उभरा। और इस ग्रीक एम्पायर से भी जब उस वक्त जब ये सल्तनत के तौर पे उभरा तो ग्रीक एम्पायर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, एक ग्रीस कंट्री तक या एक बहुत छोटी सल्तनत रह चुकी थी। लेकिन इस ज़माने में 750 से 500 बिफोर क्राइस्ट में ग्रीक एम्पायर ने बेजेंटियम को कॉलोनाइज़ किया, अपने मातहत किया। देन 507 से डेमोक्रेसी इनागुरेटेड, ग्रीक एम्पायर के अंदर डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, देयर वाज अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रीक हिस्ट्री। सो ये यूरोप का एक वेल डेवलप्ड क्लासिकल एज थी। There was a full development in art, culture, literature, in everything, in government, in politics. 336 से 323 बिफोर क्राइस्ट में अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म का ज़माना है इसी ग्रीक एज में, जिसने पर्शियन मोनार्क को शिकस्त दी, पर्शियन एम्पायर का जो बादशाह था उसको। 323 से 30 तक इसको स्पेशली हेलेनिस्टिक एज कहा जाता है। ओके, हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन और होमरिक एज 1200 से लेके 740 बिफोर क्राइस्ट। अब इस एज का हमारा जो असल पर्पस था ग्रीक एज को पढ़ने का, इस एज के राइटर बड़े कौन कौन से थे, इसके फ़िलासफ़र्स कौन कौन से थे, इसमें ड्रामा, पोइट्री, लिटरेचर की क्या हिस्ट्री थी, हम सिर्फ उन चीज़ों के नाम पढ़ेंगे। सो टेल्स इज़ सेड टू बी फादर ऑफ फ़िलासफ़ी, ही इज़ सेड टू बी फादर ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। टेल्स भी इस एज से बिलोंग करता है ग्रीक एज में, जिसने बाद वाले राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। सोक्रेटिस, जिसे सुकरात कहा जाता है, 470 टू 399 बिफोर क्राइस्ट, वो भी ग्रीक एज से बिलोंग करता है। दैन ल्यूसिपस 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। दैन डेमोक्रिटस ये वही है जिसने एटम का वर्ड दिया, केमिस्ट्री के अंदर भी आप इसका तज़किरा पढ़ते होंगे। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज पार्टिकल्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम, ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एटमॉस मींस इंडिविजिबल। केमिस्ट्री इन फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आप अपनी बुक्स में ये पढ़ते होंगे डेमोक्रिटस का इंट्रोडक्शन। Then there is Plato. So who was Plato? Plato 427 before Christ to 347 before Christ में Plato यानी कि अफलातून, he was actually in this age. फिर अफलातून का स्टूडेंट एरिस्टोटल, अरिस्टो जिसे कहते हैं, जिसकी एक बुक जो है वो पोइटिक्स आपके कोर्स में भी शामिल है, इंग्लिश लिटरेचर में आप पढ़ते हैं। सो एरिस्टोटल बिलोंग्स टू 384 to 322 before Christ. So these were famous philosophers in this Homeric age. Then ड्रामा के अंदर मैरी, एक ट्रोजन वुमेन जिस ड्रामे में दिखाई गई, जो मॉडर्न एटीट्यूड्स रिफ्लेक्ट करती है और लोगों को नॉट सिर्फ रॉयल्टी नहीं, सिर्फ बड़ी रिच क्लास की फैमिलीज़ को इस ड्रामे में नहीं बल्कि रियल पीपल उस सोसाइटी के, उनके बारे में ये ड्रामा शो करता है। I don't know whether this drama still exists or not. Plays have a realistic flavor. इस एज के जो प्लेज हैं उनके अंदर एक रियलिस्टिक टच है, वहाँ के लोगों के कॉमन इश्यूज़ को डिस्कस किया है। Then Aristophanes, a famous writer, master of Greek comedy, 40 कॉमेडीज इसने लिखी, जिसमें से 11 still survives, 11 मौजूद हैं अब भी। अब बिफोर क्राइस्ट में ये राइटर्स हैं जिनकी कॉमेडी, जिनकी ट्रेजेडीज़ बाद में चल के Latin literature के अंदर and then came into English literature. So this is the root of all Western European literature, the Greek age and Greek literature. Aeschylus, a very famous writer, I think so, when Martin Luther King, his famous speech, I have a dream, civil rights movement, जब मार्टिन लूथर किंग की डेथ हुई थी, तो when blacks were killing the white people and there was a chaos and there was very difficult situation in the history of United States of America. So at that time the younger brother of John Fitzgerald Kennedy came on the mic and he made a very famous speech. In that speech he
normalized all the very much exhausted black form necros people who were wanted to revenge for the killing of Martin Luther King. तो वो ब्लैक फॉर्म पीपल जब बहुत ज़्यादा देयर वाज ग्रेट मैलिस इन यूनाइटेड स्टेट्स इंतशार फैला रहे थे, तो उस वक्त अमेरिका के जो एक फेमस प्रेसिडेंट जॉन फिट्जजेरल्ड कैनेडी के यंगर ब्रदर थे, उन्होंने एक स्पीच की थी, बड़ी पावरफुल स्पीच है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, इंग्लिश full of rhetorical powers of English. There was a very beautiful flow in his English. उसमें भी उन्होंने एस्किलस पोइट को कोट किया था और उनकी बड़ी खूबसूरत लाइंस को ऐड किया था. सो एस्किलस इज़ अ वेरी फेमस राइटर. एस्किलस इज़ फादर ऑफ ट्रेजेडी. पहले कॉमेडी का आपने देखा एस्किलस, नाउ सेकंड इज़ फादर ऑफ ट्रेजेडी. सो अब देखें जो ट्रेजेडी आप डिस्कस करते हैं शेक्सपियरन ट्रेजेडी एंड देन लेटर ऑन इन डिफरेंट राइटर्स. सो द रूट ऑफ ट्रेजेडी इज़ इन आल्सो इन ग्रीक लिटरेचर. And Western literature is most of the time that is all tragic. There are always horrible endings. इन्होंने एस्किलस का क्या कंट्रीब्यूशन था ड्रामा के अंदर? चेंज द डायफ्राम इनटू ड्रामा, एडेड अ सेकंड एक्टर. इससे पहले सिर्फ सिंगल एक्टर था. फर्स्ट एक्टर एडेड प्रॉप्स एंड सीनरी, रिड्यूस द कोरस फ्रॉम 50 to 15. इन्होंने कोरस जो कोरल सॉन्ग्स के लिए ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है उसको इन्होंने कम किया. देन सोफोक्लीज अगेन वेरी फेमस प्ले राइटर. 100 plays इसने लिखे थे. दिस इज़ व्हाट वी से ग्रीक लिटरेचर, दिस इज़ व्हाट वी से ग्रीक सिविलाइजेशन, हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन दैट वाज फुल of literature, of art, of political systems, of buildings, of construction, each and everything. So that was a very highly developed civilization in classical age of European history. So 100 plays सोफोक्लीज ने लिखे जिसमें से 7 अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. सोफोक्लीज ने ड्रामा में थर्ड एक्टर ऐड किया. दिस इज़ हिज कंट्रीब्यूशन इन ड्रामा. He changed the focus from interactions between humans and the gods to interactions between humans. सोफोक्लीज से पहले जो ड्रामे लिखे जाते थे उसमें सारे इश्यूज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स इंसान और खुदा के दरमियान के मामलात ज़्यादा थे, इंसान और उनके खुदाओं के दरमियान, जो कि दर हकीकत there is only one God and not so many gods, but according to the beliefs of Sophocles. But we being a Muslim must have a firm belief that there is only one God who is Allah Azza wa Jal. And the gods to interactions between humans. So Sophocles converted this interaction between humans and human beings. इंसानों के माबैन. Then Euripides ट्रैजिक ड्रामाटिस्ट था. इसने 90 plays लिखे जिसमें से 18 अभी मौजूद हैं. He also belongs to before Christ. Poetry. होमर ब्लाइंड पोइट, बहुत ही फेमस पोइट है. आप में से हर एक ने इसका नाम सुना होगा कि होमर की इलियड. सो देयर दैट इज़ अ वेरी फेमस नेम. होमर वाज एक्चुअली a blind poet. 750 before Christ was his age. So Homer blind poet 750 before Christ में ये ब्लाइंड पोइट गुजरा है. इसकी फेमस पोइम्स में से लॉन्ग नैरेटिव एपिक दैट इज़ इलियड अबाउट ट्रोजन वॉर्स, कैसे हुई ट्रॉय इलाका और ट्रोजन वार जो ग्रीक एज में हुई, बहुत लंबी जंगें, इसके बारे में एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम इलियड है होमर की. देन सेकंड फेमस पोइम ओडेसिस, लॉन्ग जर्नी होमवर्ड फ्रॉम ट्रोजन वार. ओडेसे जो किंग था वो जब ट्रोजन वार के बाद अपने घर की तरफ एक लंबे सफ़र पर रवाना हुआ तो उसकी क्या फीलिंग्स थी, क्या इवेंट्स थे, ओडेसे पोइम के अंदर उन्होंने उसको कवर किया. सो ये दोनों पोइम्स इलियड एंड ओडेसिस होमर पोइट की हैं जो ग्रीक एज में गुजरा है. ऑल राइट, सो होमर इज़ अ वेरी फेमस पोइट दैट यू विल स्टडी throughout your course of English literature. A very famous name. So this is the benefit that we get from studying these classical ages. In this class we discussed all about the Greek age, and here you see in the next class we shall move towards Roman age.